हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम, अदरवाइज वी कैन से एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। First of all, introduction about the urinary system. What are the organs which are present in the urinary system? There is presence of two kidneys in our body. Kidneys are bean-shaped organ that are present in the abdominal cavity. Two kidneys, two ureters, one urinary bladder, and then last is urethra. These are the two kidneys. Ureters also two, that comes each from each kidney and transfer the urine into the urinary bladder. Urinary bladder store the urine, and when we want we can expel out the urine from our body through the urethra. These are the organs which form the urinary system. Two bean-shaped kidneys, two ureters, one urinary bladder for the storage of urine, and last one is the urethra, which is a small tube-like structure, and that opens one end open to the urinary bladder, and then the other end is to the external environment, and through the process of micturition we pass the urine when we wish. These are the organs of the urinary system. Next, what are the main functions of our kidney? Main functions. First main function of kidney is to maintain homeostasis. Because as we know that the main function of kidney is to form the urine. Through the urine, number of waste products are expelled out from our body. For example, water, electrolytes waste, metabolic waste, nitrogenous waste product like urea, uric acid, some toxic material of the drugs. These waste products expel out through the urine from our body, and that urine is formed by the urinary system. So by this, when we expel out the waste product from our body, the homeostasis of our body is get maintained. The second function is kidneys produce the hormone erythropoietin. This is a hormone and which is necessary for the formation of RBCs. किडनीज क्या बनाती है? एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन बनाती है जो आगे चल के हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज. थर्ड फंक्शन इज किडनी एक एंजाइम भी बनाती है दैट इज कॉल्ड रेनिन दैट रेगुलेट द ब्लड प्रेशर. So these are the main three functions of the kidney. First function is to मेंटेन द होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी, की बॉडी का बैलेंस बना के रखना, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना के रखना. बिकॉज यूरिन फॉर्म होता है किडनी के थ्रू और एक्सपेल आउट होता है फ्रॉम आवर बॉडी से, और यूरिन के थ्रू नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, ये सभी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और बॉडी का इंटरनल जो है एनवायरनमेंट वो बैलेंस में रहता है. इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो मेंटेन करती है हमारी बोथ किडनीज. देन सेकंड फंक्शन इज एरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन बनाती है किडनीज जो कि आरबीसीज की फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी है. देन थर्ड फंक्शन इज एक एंजाइम बनाती है हमारी किडनीज रेनिन नाम का जो कि जरूरी है हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए. सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ आवर किडनीज. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी. सबसे पहले आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी. So before doing the structure in detail, let us discuss about the introduction about the kidneys. कि kidneys हमारी कैसी होती हैं. There are two kidneys in a human body, and each kidney is a bean-shaped organ, and it is about 11 centimeter in length, and it is about 6 centimeter wide
and its weight is about 150 ग्राम। तो हर एक ह्यूमन बॉडी में 2 किडनीज है और ईच किडनी जो है बीन शेप्ड ऑर्गन है। देन इसकी लेंथ कितनी है हर एक की 11 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 6 सेंटीमीटर एंड वेट इज अप्रोक्सीमेटली 150 ग्राम। देन किडनीज लाइज इन द अब्डोमिनल कैविटी, पोस्टीरियर अब्डोमिनल कैविटी। अगर हम ह्यूमन बॉडी का फ्रंट ट्रंक देखें तो देयर इज थोरैसिक कैविटी एंड देयर इज अब्डोमिनल कैविटी। तो किडनीज कहाँ पे लाई करती है? मोस्ट पोर्शन ऑफ द किडनी लाई इन द अब्डोमिनल कैविटी। तो किडनीज का ज्यादातर पोर्शन जो है अब्डोमिनल कैविटी में लाई करता है, लेकिन इसका कुछ जो अपर वाला पोर्शन है वो लाई करता है थोरैसिक कैविटी में। और लास्ट रिब जो है किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो किडनी लाइज इन द पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल। इसके फ्रंट साइड पे होते हैं सारे डाइजेस्टिव हमारे ऑर्गन और किडनी की लोकेशन पीछे होती है ईच ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। अगर वर्टिब्रा के अकॉर्डिंग हम देखें, हमारी बैकबोन के अकॉर्डिंग देखें, तो बैकबोन के दोनों साइड पे एक एक किडनी जो हमारी लोकेट करती है। और अगर वर्टिब्रा के अकॉर्डिंग देखें तो ये 12th थोरैसिक वर्टिब्रा से लेकर 3rd लंबर वर्टिब्रा तक इसकी लोकेशन होती है। और इसको जो लोअर रिब है वो इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और किडनीज के अराउंड फैट की एक मोटी वाली परत होती है वो इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सो दिस इज जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द किडनीज। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द किडनीज। अगर हम सबसे पहले राइट और लेफ्ट दोनों किडनीज के देखेंगे कि सुपीरियरली राइट किडनी के ऊपर कौन सा ऑर्गन है। बोथ राइट एंड लेफ्ट दोनों किडनी के ऊपर सुपीरियरली है हमारा अड्रिनल ग्लैंड। ऐसे ही लेफ्ट के ऊपर भी है अड्रिनल ग्लैंड। हर एक किडनी के ऊपर होता है प्रेजेंट अड्रिनल ग्लैंड सुपीरियरली। देन पोस्टीरियरली मतलब पीछे की तरफ, सुपीरियरली मतलब ऊपर की तरफ, पोस्टीरियरली मतलब पीछे की तरफ क्या है? अब्डोमिनल मसल्स। तो इधर भी ये सेम ही है। पोस्टीरियरली लेफ्ट किडनी के पीछे क्या है? अब्डोमिनल मसल्स। देन अंटीरियरली राइट किडनी के फ्रंट में अंटीरियर मतलब आगे की साइड में कौन से ऑर्गन्स हैं? दैट इज मेनली लिवर एंड लिवर डक्ट्स, हेपेटिक डक्ट्स। The left kidney lies slightly at the lower side as compared to the right kidney because large portion at the right side of our body is occupied by the liver. लेफ्ट किडनी जो है स्लाइटली ऊपर की तरफ होती है और राइट किडनी जो है स्लाइटली नीचे की तरफ होती है बिकॉज राइट साइड पे हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का लीवर, वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ऐसे ही अगर एंटीरियरली देखें लेफ्ट किडनी के आगे क्या होता है हमारा स्प्लीन एंड स्टमक। These are the organs associated with the kidneys. अभी हम किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसके बारे में ही बताएंगे कि उसके ऊपर कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उसके पीछे वाले पोर्शन पे कौन से ऑर्गन्स होते हैं और उसके आगे वाले पोर्शन में कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो देयर आर 2 किडनीज इन आवर बॉडी। तो राइट के आगे पीछे ऊपर जो है डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और लेफ्ट के थोड़े से डिफरेंट है। सो दीज आर द ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द किडनीज। तो नेक्स्ट इज द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी। अब हम ड्रॉ करेंगे डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी। तो किडनी इज द बीन शेप्ड ऑर्गन एंड इट इज मेड अप ऑफ मेन 3 लेयर्स। द आउटर प्रोटेक्टिव फाइब्रस लेयर इज कॉल्ड कैप्सूल। जो बिल्कुल आउटर वाली लेयर है फाइब्रस सेल टिश्यू की बनी हुई जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किडनी को, दैट लेयर इज कॉल्ड कैप्सूल। एंड आफ्टर द कैप्सूल द नेक्स्ट पोर्शन इज reddish in color and that is called cortex, and after the cortex portion the next layer is called medulla.
So these are the main three layers of a kidney. The outer fibrous layer is called capsule, and after the capsule the next reddish colored layer is called cortex, and after that the innermost layer is called medulla, which contain these triangular structures that is called pyramids. मेडुला जो इनरमोस्ट लेयर है उसमें ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, ये वाली ट्राइंगल वाली, और इसे बोलते हैं पिरामिड्स. Pyramids which are present in the innermost layer medulla. Then this concave portion is called hyla. Through this concave portion enter into the kidneys. ये जो concave वाला portion है इसके थ्रू रीनल आर्टरी किडनी की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और रीनल वेन जो है किडनी से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अवे लेके जाती है. Then this funnel shaped area is called renal pelvis. तो सबसे पहले हमने बताया there are three main layers of a kidney. The outer fibrous layer is called capsule. Then after the capsule there is a reddish colored layer that is called cortex, and the innermost layer is medulla, which contain triangle structures that is called pyramids. And the tip of the pyramid, the apex of the pyramid is called renal papilla. रीनल पेपिला जो है आगे चलकर कहाँ पे ओपन होता है, ये जो हर एक पिरामिड का है एक रीनल पेपिला, ये आगे चल के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड माइनर कैलेक्स. और आगे वाला जो ब्रॉड पोर्शन है दैट इज कॉल्ड मेजर कैलेक्स. एंड दिस फनल शेप पोर्शन इज कॉल्ड रीनल पेल्विस. रीनल पेल्विस मेन जो है हमारा यूरिन कहाँ पे फॉर्म होता है किडनीज में, बोथ द कॉर्टेक्स एंड मेडुला. बोथ द कॉर्टेक्स एंड मेडुला, these both are called functional portion. कॉर्टेक्स एंड मेडुला दोनों को ही फंक्शनल पोर्शन कहा जाता है दोनों को, बिकॉज इन दोनों पोर्शन में क्या प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस की गिनती में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे. दैट इज द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी. तो अगर हम ये तो हमारे नेक डाइस की तरफ, नेक डाइस से हम देख सकते हैं किडनी कैसी होती है. अगर हम माइक्रोस्कोपिक की हेल्प से देखें तो किडनीज में यूरिन फॉर्म कौन करता है, नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉन इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी. उनकी जो है लोकेशन कहाँ पे होती है, इन द कॉर्टेक्स एंड इन द मेडुला. तो जो एक्चुअल में किडनी में काम और वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, सम पार्ट इन द कॉर्टेक्स एंड सम पार्ट इन द मेडुला. वो जो है नेफ्रॉन्स वो मिलियंस की गिनती में होते हैं और वो यूरिन बनाते हैं. ये जो आर्टरी ब्लड लेके आई, रीनल आर्टरी ब्लड लेके आई, वो डिवाइड एंड रीडिवाइड होके जब तक इन नेफ्रॉन की तरफ पहुंचेगी तब तक वो बिल्कुल थिन हो जाएगी उसकी मेम्ब्रेन, और फिल्ट्रेशन का पॉसिबल हो सकेगा वहाँ पे प्रोसीजर. और फिल्ट्रेशन जब होता है हमारे ब्लड का तो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं ब्लड से, और नंबर ऑफ जो है इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह वो भी बाहर निकल जाते हैं, वाटर बाहर निकल जाता है एक्स्ट्रा जो होता है, तो यूरिन फॉर्म हो जाता है. तो यूरिन इज फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला. एंड देयर कितनी होती है उनकी गिनती, मिलियंस में होती है नेफ्रॉन की गिनती. वो वहाँ यहाँ पे लाई करते हैं, वो यूरिन फॉर्म करते हैं मेनली. तो यूरिन हमारा नेफ्रॉन से बन के कहाँ आता है, रीनल पेपिला के थ्रू. पहले माइनर कैलेक्स में आएगा, फिर मेजर कैलेक्स में आएगा,
फिर जो है ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर रीनल पेल्विस, इससे होता हुआ यूरेटर्स में आ जाएगा हमारा जो यूरिन जो बनाया है नेफ्रॉन्स ने, और आगे आगे ऐसे चलता चलता कहाँ तक आ जाएगा, यूरेटर्स में, यूरेटर्स में आ जाएगा। और यूरेटर्स के बाद नीचे आके हमारे यूरिनरी ब्लैडर में कुछ टाइम के लिए स्टोर रहेगा। देन उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ मिक्सचरेशन। देन ये जो रीनल पेल्विस है, ये जो फनल शेप्ड यहाँ पे एरिया है, दैट इज कॉल्ड रीनल पेल्विस, दैट हैविंग द स्पेशल टाइप ऑफ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी दैट हैव स्मूथ मसल्स एंड epithelial lining, and they have the special intrinsic property जो यहाँ पे यूरिन अकमुलेट हो गया कि वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता रहता है, थोड़ा बहुत यूरेटर जो है उनकी प्रोपेलिंग जो एक्शन है, उन मसल्स का प्रोपेलिंग एक्शन है, तो यूरिन को वो आगे आगे पास आउट करता है। प्रोपेलिंग एक्शन ऑफ दैट मसल्स propel the urine which is formed by the kidneys and move the urine towards the urinary bladder. urinary bladder में आके यूरिन को स्टोर होना है कुछ टाइम के लिए, और जैसे जैसे ही यूरिन स्टोर होता रहता है यूरिनरी ब्लैडर का साइज बढ़ता जाता है, और उसके बाद जो है हम थ्रू द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन यूरिन जो है हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट कर देंगे। सो दिस इज द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी। देयर आर मेन 3 layers: cortex, capsule, outermost layer, then cortex, and innermost layer is the medulla, which contain these triangular structures that is called renal pyramids. The apex of this triangular renal papilla open into the minor calyx, then into the major calyx, and then into the funnel shaped structure renal pelvis. This funnel shaped structure extend downward and form the ureters that open into the urinary bladder and finally into the external environment. So this is all about structure of a kidney. एक्चुअली जो किडनी की स्ट्रक्चर होती है उसमें दो कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों ही फंक्शनल पोर्शन होते हैं, बिकॉज उनमें नंबर ऑफ जो है मिलियंस की गिनती में नेफ्रॉन्स होते हैं जो एक्चुअली में यूरिन बनाते हैं बाय फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड विच कम्स थ्रू द रीनल आर्टरी। तो ब्लड को फिल्टर कर करके यूरिन कौन बनाता है, नेफ्रॉन्स, और फिर यूरिन जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप अकमुलेट होके यहाँ माइनर कैलिक्स में आता है, देन मेजर कैलिक्स में, देन रीनल पेल्विस के थ्रू हमारे नीचे डाउनवर्ड कहाँ पे आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, एंड देन बाय द कंट्रोल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर स्फिंक्टर्स एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन यूरिन इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम आवर बॉडी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन एंड देन फर्दर अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, कि कैसे किडनीज जो है यूरिन फॉर्म करती हैं। So this was all about the structure of a kidney. Thank you.